Okay, so now we are going to continue with the last previous video in which I have told you the formulae of inverse trigonometric function, which we are going to apply and solve some questions. For the very first question, I have this tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3. Tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3. Let's solve it. The idea is this video is going to be very interesting because I am going to solve it by 3 different methods, and first one is the basic of inverse trigonometric function. Second method will be using complex number. Yes, complex number. And third, we are going to solve it using simple geometry. As simple as that. ये बिल्कुल within 10 seconds you will be able to understand कि हाँ exactly what is the answer is exactly right. So फर्स्ट मेथड की बात करते हैं. tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता होता है π/4. वाई बॉदर अबाउट इट. tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स लिखेंगे और tan a प्लस बी. tan a प्लस बी क्या होता है? tan a दैट इज 2 प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b upon 1 minus tan A tan B. But if you remember, that was the case when x into y less than 1 था. यहाँ x into y greater than 1 है, इसलिए प्लस पाई भी होगा. Now this is π/4 plus tan inverse 5 upon minus 5 plus pi. π/4 tan inverse minus 1, that is minus π/4. तो आंसर comes out to be pi. Now suppose you don't remember this pi. As I said ना कि फॉर्मूले में जो बेसिक मैंने बताया है वो याद कर लो. डिफरेंट केसेस की जगह अगर आप डोमेन कोडोमेन भी याद रखोगे तो मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली इट इज मैनेजेबल. तो अगर ये पाई नहीं लिखते, ये पाई नहीं लिखते, ये पाई नहीं लिखते तो आंसर 0 आता. बट देन वी नो दैट कि tan इनवर्स 1 π/4 है. tan इनवर्स 2 भी सम एंगल होगा, π/4 से ज्यादा होगा. π/4 से ज्यादा क्या हो सकता है? 60 पे वैल्यू √3 होता है. 70 के आसपास वैल्यू होगा. 76 पे वैल्यू 4 होता है. फिजिक्स में आपने पढ़ा है tan 76 का वैल्यू 4 होता है. कब? प्रोजेक्टाइल मोशन में देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें रेंज इज इक्वल टू हाइट. नो, दैट इज नॉट 45 डिग्री. 45 डिग्री में रेंज मैक्सिमम होता है. व्हाट आई सेड, रेंज इक्वल टू हाइट. रेंज इक्वल टू हाइट में tan थीटा इक्वल टू 4 आता है, दैट इज 76 डिग्री. खैर, तो 70 के आसपास आएगा और ये 72 73 के आसपास आएगा. तो ऑब्वियसली वी अंडरस्टूड कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी 0. सो अब tan का है तो 2 पाई के मल्टीपल्स उसमें आ जाए, सॉरी पाई का मल्टीपल उसमें ऐड होगा. एंड ऑब्वियसली दिस इज 45, अप्रोक्सीमेटली 70. So the answer comes out to be approximately 180. So answer will be pi, क्योंकि tan में pi का सीन आता है. तो if you don't remember that cases, then also you can manage. Just you have to keep in mind कि हमें कुछ करना पड़ेगा. You cannot just directly use this part and be done with it. ऐसे नहीं चलेगा. आपको लास्ट में देखना पड़ेगा जो आंसर आया है वो सही है या फिर वो केसेस याद कर लो. सेकेंड मेथड की बात करते हैं. सेकेंड मेथड की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे आएगा? ओके, लेट मी टेल यू कि 1 प्लस आयोटा एक नंबर लेते हैं. उसका आर्गुमेंट क्या होता है? द आर्गुमेंट विल बी 45 डिग्री. tan इनवर्स 1. इफ यू नो वेयर आई एम गोइंग, think of it कि next what I am going to write.
आई एम गोइंग टू राइट 1 + 2i. 1 + 2i का आर्गुमेंट क्या होगा? tan इनवर्स b by a होता है 2/1 tan इनवर्स 2, एंड आई एम गोइंग टू राइट 1 + 3i, एंड दैट इज tan इनवर्स 3 इसका आर्गुमेंट होगा. If I combine all these three, multiply these three and find the argument, that is what? That is argument of this plus argument of this plus argument of this. Let's do it again. ये जो लिखा है tan इनवर्स 1, that is argument of 1 + i. tan इनवर्स 2 is argument of 1 + 2i, and tan इनवर्स 3 is argument of 1 + 3i. And we know that argument का जो फॉर्मूला है वो log जैसा काम करता है, और log a + log b + log c equal to log a into b into c. Argument of z1 plus argument z2 plus argument z3 is argument z1 into z2 into z3. अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं तो आई विल गेट 1 + 2i + i minus 2 1 + 3i. सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. व्हाट डू आई गेट? -1 + 3i into 1 + 3i. What do you see? A minus b and a plus b, that is a square minus b square, that is -10. -10 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? -10 का आर्ग्यूमेंट पाई होता है. लो जी, आंसर आ गया. -10 का आर्ग्यूमेंट पाई. यस, -10 will be something here. -10 का मतलब -10 + 0 iota. So the vector joining point from origin will make this angle pi with positive x-axis in anti-clockwise direction, and that is the argument. Second method. Third method की बात करते हैं. Very interesting. I am making a grid of 3/3. Let's make a grid of 3/3. Okay. Now I am going to join the lines this and I need one more. 2, 3. This. Okay. And then this. Actually, this is not needed. Now, if I say this is alpha, this is beta, this is gamma. Let's call it alpha, beta, gamma. अल्फा की बात करते हैं तो tan alpha is perpendicular upon base. ये सारे जो ग्रिड है वो 1/1 का ग्रिड एज्यूम कर लो. लेट्स से 1 1 1 1 1, ये सब 1 1 साइड का है. तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 2. tan गामा का वैल्यू क्या होगा? tan गामा का वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/1, दैट इज 3. और tan बीटा का वैल्यू क्या है? tan बीटा इज perpendicular upon base. What is this perpendicular? This length will be under √5. Think of it. The length will be under √5. Pythagoras in this triangle. 2 square plus 1 square. And this will also be √5 in this small triangle. What do I see? Tan beta is perpendicular upon base and matlab √5/√5, and that is 1. You see something? Tan inverse 1 plus tan inverse 2
plus tan inverse 3. Tan inverse 1 is what? That is beta. Tan inverse 2 is what? Actually alpha. And tan inverse 3 is what? Gamma. The question is alpha plus beta plus gamma, which you see in the diagram. Alpha plus beta plus gamma is what? Straight angle, that is 180 degree. Alpha plus beta plus gamma is straight angle 180 degree. Okay. I have one more method. Trigonometry में take some time to digest it. It is very simple method. बहुत रेयरली कहीं इस तरह के क्वेश्चंस यूज होते हैं. इस तरह की ज्योमेट्री से वी आर एबल टू यूज, बिकॉज अल्टीमेटली द आइडिया इज कि ये अल्फा बीटा गामा, ये जो 1 2 3 एंगल है tan थीटास के, दैट इज पॉसिबल फॉर अ ट्राइंगल. इसलिए आसानी से मैनेज हो गया. अगर ट्राइंगल नहीं होता, अगर 190 आना होता तो हम ऐसे इजिली नहीं शो कर पाते. लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्चुअली में स्क्वायर और रेक्टेंगल बना के सॉल्व किया जाता है, बट नॉट अ वेरी गुड आइडिया. एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक समझने के लिए, स्टार्टिंग के लिए दैट इज गुड, बट यू कैन नॉट यूज दैट इन ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. नेक्स्ट आइडिया इज कि दिस इज tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3. So let's say कि tan inverse 1 is A, tan inverse 2 is B, and tan inverse 3 is C. So I can say tan A equal to 1, tan B equal to 2, and tan C equal to 3. This is your fourth method. So tan A, tan B, tan C का वैल्यू पता है. Now you know one thing कि tan A plus tan B plus tan C equal to tan A into tan B into tan C होता है. We all know that tan A plus tan B plus tan C equal to tan A, tan B, tan C होता है. Not always. This is conditional identity. This happens only if A plus B plus C equals to pi. No, not exactly pi भी, n pi होगा तो भी चलेगा. तो अगर A plus B plus C का वैल्यू n pi है तो tan A plus tan B plus tan C equal to tan A, tan B, tan C होता है. Now in this question what we have is tan A का वैल्यू 1 है, tan B का वैल्यू 2 है, tan C का वैल्यू 3 है. What we see that 6 equal to 6, इसका मतलब A plus B plus C has to be n pi. अब tan इनवर्स की वैल्यूज हैं, वो क्या होगा? 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 पॉजिटिव नंबर का tan इनवर्स है. अब 0 to पाई बाई 2 टाइप के 3 नंबर्स अगर ऐड करें, इफ यू डोंट पुट इनटू द आवर माइंड कि ये वैल्यू लगभग हमें पता है 70 डिग्री के आसपास, भूल जाओ भाई. 0 से 90, 0 से 90, 0 से 90 तीनों को ऐड किया तो 0 से 270 आया. 0 से 270 में पाई का मल्टीपल क्या होता है? 180 and 0. 0 and 180 are the two possibilities, 0 and 1 pi. अब 0 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, तो बचा क्या? पाई. This implies that A plus B plus C equals to pi. So that is your fourth method. So ये तो चलो एक क्वेश्चन था, हमने अलग अलग तरीके से सॉल्व किया, बट एक्चुअली दिस इज द मेथड दैट वी आर गोइंग टू यूज frequently. So let's move to other questions and solve them. Yes, it was fun. It was okay to understand and see how differently we can approach a question. This is what you have to develop. If you can think of something other than what you have read, means your mind is working hard, your mind is working well, and you are actually able to create something which you have not been taught. That is why I keep telling you different ideas, different methods all together. Nobody could say कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा या ऐसे सॉल्व होगा या ऐसे सॉल्व होगा. The only thing that comes to mind of every student is this:
ये दोनों तो कभी किसी ने बोला ही नहीं, ये कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे बोला हुआ है कि यस सर वी हैव दैट आइडेंटिटी एंड वी कैन यूज दैट, बिकॉज आई हैव टोल्ड माई स्टूडेंट्स एंड इवन यू इन ट्रिग्नोमेट्री कि tan का क्वेश्चन अगर है तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगता है ABC में रिलेशन और tan का फॉर्मूला लगाते हैं, तो दैट इज सिंपली एंगल्स ही तो है, तो वी हैव यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट, बट दिस इज वेरी डिफरेंट एंड नॉट ऑलवेज यूजफुल। ये फिर भी काम आता है, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर ट्राइंगल नहीं होगा तो भी चलेगा, बिकॉज आर्गुमेंट में लिखना कोई बड़ा काम नहीं है, बट फॉर दिस sake of all the questions of trigonometry, inverse trigonometry, tan inverse में questions ज़्यादा होते नहीं हैं, इसलिए ये फर्स्ट वाला जो मेथड है that is actually the proper method to solve the questions. So let's do this. Okay, so we have these 3 more questions. Let's start with this part. 4 tan inverse 1 by 5. 4 tan inverse 1 by 5 we don't know. 2 tan inverse x तो हमें फिर भी पता है, but 4 tan inverse we don't know. So what we can do is we can do 2 times 2 tan inverse x. Then we will use that later stage. So let me first find 2 tan inverse 1 by 5. Then we can again utilize the formula. 2 tan inverse 1 by 5 का formula होता है tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. And there will be no different case. ये बिल्कुल सही केस है, because x into y 1 by 5 into 1 by 5 less than 1 है. If you remember, भाई 2 tan inverse x को I can write tan inverse x plus tan inverse x, और फॉर्मूला क्या था, tan inverse x plus y upon 1 minus xy. If x into y less than 1 तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. So this gives me 2 tan inverse 1 by 5 equals to tan inverse. This gives me 2 by 5 मतलब 10 by 25 upon 24 by 25. That gives me 5 by 12. Now if I need 4 tan inverse 1 by 5 means I need 2 tan inverse 5 by 12. इसका डबल किया तो इसका डबल हो गया, and that will be tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. कैसे आया, क्या हुआ ये? This is actually the same formula. What do I get? I get tan inverse 10 by 12 upon 144 minus 25. That is 119 upon 144. ये 12 था. 12 are this, so that gives me tan inverse 120 upon 119. And now what we need? We finally have the question as 4 tan inverse 1 by 5 minus tan inverse 1 by 239. What do I get? I get tan inverse 120 upon 119 tan inverse 1 by 239. I can give you an idea कि after this how can we find the answer? How can we find the answer after that? Suppose the options are 0, pi by 4, pi by 2 and pi. ऐसा ही कुछ ऑप्शन होगा. Tan inverse 120 by 119 is what? Approximately tan inverse 1 मतलब 45 है, 45 से 1 डिग्री ज्यादा कर लो, 46 डिग्री कर लो. और ये tan inverse 1 by 239 वेरी स्मॉल नंबर, मान लो 1 डिग्री है, तो 46 minus 1 is what? 45. आंसर is 45 डिग्री. But definitely we can calculate anytime, and that gives me tan inverse क्या था, tan A minus tan B upon 1 plus 120 upon 119
1/239। पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1। तो दैट इज tan inverse 1 and that is 45 degree. Now the idea is कि are you actually going to solve this? क्योंकि मैंने तो रैंडम लिख दिया, मुझे पता है भाई 45 आएगा, मैंने लिख दिया, बट अगर एक्चुअल कैलकुलेट करने जाएं इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेट मी शो यू। एलसीएम लेंगे तो 239 इंटू 120 माइनस 119 अपॉन 119 इंटू 239 प्लस 120। What to do? Let me show you what you can do other than actually multiplying everything. This 239 into 120 को मैंने 239 into 119 प्लस 239 लिखा, 239 into 120 हो गया, माइनस 119 डिवाइडेड बाय 119 into 239 प्लस ये 120 को what we can write, this 120 we can write 120 only. Now see closely, you will see 239 अगर कॉमन लेंगे, yeah this is 239, okay leave it, 239 into 119 मैच कर गया और 239 माइनस 119 इज बेसिकली 120 मैच कर गया ऊपर नीचे, मतलब दिस इज tan inverse 1 एंड द आंसर इज π/4। तो वंस यू गेट द आइडिया यू विल बी एबल टू मैनेज, बिकॉज सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़ा टिपिकल है, सिंपल तरीके से देखोगे तो थोड़ा टिपिकल है। हाँ, वी कैन डू इट और नॉट with complex number, that is your choice। करना है, if you want you can try this using the complex number and you'll be able to do just fine, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, exact answer will be there, there is no problem at all। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन तो एग्जैक्टली वैसा ही। तो पहले ये चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। a इंटू बी 2/36 1/18 लेस देन 1 है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन दिस, दैट गिव्स मी tan इनवर्स 9 प्लस 8 अपॉन 36 माइनस 2, दैट इज tan इनवर्स 1/2। खत्म आंसर। tan इनवर्स 1/2 इज एक्चुअली cot इनवर्स 2 ऑल्सो। तो ये तो क्वेश्चंस हो गए। एक ये मॉडल क्वेश्चन है, देखना, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स a इज पॉसिबल फॉर व्हाट। अब x और a के बारे में कुछ पता ही नहीं, बट द आइडिया इज एज आई सेड कि यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर द डोमेन एंड कोडोमेन। सो आइडिया इज कि इसका रेंज -π/2 से +π/2 ही हो सकता है। So I can say that 2 sin inverse A should also be belonging to -π/2 से +π/2. So I can tell you कि sin inverse A belongs to -π/4 से +π/4. And so I can say you that A belong to sin of -1/4 और साइन ऑफ 1/4, मतलब mod A is less than equals to 1/√2 and that is your answer। So I know that कि भाई tan का क्वेश्चन आगे से जब भी आपके सामने आएगा आपके दिमाग में यही चलने वाला है, और कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मेथड बहुत आसान है। Yes, you can solve it here, you can use it here, you can use it there, जहाँ भी आपका मन हो यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मल मेथड्स आर ऑल्सो ओके, बट एनी टाइम कॉम्प्लेक्स वाला tan वाले क्वेश्चंस के लिए एनी टाइम गोइंग टू बी बेटर, बिकॉज वहां आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा। बट एट द सेम टाइम द आइडिया इज कि
tan इनवर्स वाले केस में इफ यू रिमेंबर ऑल द केसेस कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, लेकिन जब आर कॉम्प्लेक्स नंबर का मेथड यूज करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर कैन नॉट बी अदर देन एनीथिंग माइनस पाई से प्लस पाई, बिकॉज द रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस पाई से प्लस पाई। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पाई से ज्यादा आना है, लाइक 180 प्लस 30 लाइक 210, अगर 210 आता है तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 210 में आंसर आएगा -150, तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली आंसर क्या है। यस, आई कैन डू दैट यूजिंग द रेंज and the codomain and the domain codomain याद होगा तो you'll be able to survive just well, no issue at all। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जो डिफरेंट केसेस होते हैं, एक्स वाई ग्रेटर देन 1, एक्स वाई लेस देन 1, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ये सब केसेस की वजह से प्रॉब्लम है। अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा ही है, but those cases that codomain makes it very difficult। So let's do some more question और धीरे धीरे it becomes easy। जितना difficult लग रहा है उतना भी नहीं है, it becomes slowly easier because when you see what kind of questions are asked, how do we approach them, it becomes धीरे धीरे comfortable हो जाएगा। Just it takes some more time, so give it some time, try to attempt some question and you'll be able to manage it efficiently। Okay, so now we have these two more questions. 2 tan inverse cos x. If I use the formula, I will get tan inverse 2 tan theta 2 tan inverse x. 2 tan inverse x का फॉर्मूला होता है tan inverse 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम क्योंकि कॉस स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 1 होता है। सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू। नाउ दिस गिव्स मी 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स should be equal to 1 by sin square x, क्योंकि tan इनवर्स अगर सेम है तो एंगल भी सेम होगा। आइडिया इज कि tan इनवर्स x और फॉर दैट पर्पस एनी इनवर्स फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन, और 1-1 फंक्शन है तो f अल्फा इक्वल टू f बीटा विल गिव यू अल्फा इक्वल टू बीटा। नाउ I can say कि I can cancel these two with keeping in mind that is sin square x is not equal to 0 because denominator है। What do I get? I get 2 cos x equal to 1, cos x equal to 1 by 2, तो answer is 60 degree। To 60 degree पे these two will be exactly same। Easy question, simple question, सीधा सीधा calculation है, nothing very difficult। sin inverse x plus sin inverse 1 minus x equal to cos inverse x। Now first thing that comes to the mind is कि sin inverse a plus sin inverse b का फॉर्मूला लगा दो, but I have a better option। cos inverse x है, sin inverse x है, दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, बेसिकली आप सिमिलर कर लेते हैं। So what I am saying is कि sin inverse x है, ये sin inverse 1 minus x है, this is 90 minus sin inverse x if you remember, this is 90 minus sin inverse x, तो I can say कि sin inverse 1 minus x will be pi by 2 minus 2 sin inverse x, pi by 2 minus 2 sin inverse x। अब दोनों साइड साइन ले लेते हैं, बिकॉज इफ अल्फा इक्वल टू बीटा देन साइन अल्फा विल ऑल्सो बी साइन बीटा, तो साइन ऑफ दिस इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। रिमेंबर द फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या यूज करें, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थिंक ऑफ इट, ये थोड़ा इसमें स्टेप क्या है कि स्मॉलेस्ट इनवर्स को थीटा मानो, x will become sin theta and this is actually cos 2 theta।
cos 2 theta is 1 minus 2 sin square theta, that is 1 minus 2 sin square theta is x square. ना ये -1 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 2x स्क्वायर, दैट गिव्स मी x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल्स टू 1/2. तो आंसर वी आर गेटिंग इज 0 एंड 1/2. दैट इज दिस. तो इनवर्स फंक्शंस को हमें क्या करना है, इनवर्स वाला पार्ट रिमूव करना है सो दैट इट बिकम ट्रिग्नोमेट्री एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व. तो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट किया, इनवर्स हटाया एंड वी आर डन. आसानी से आंसर आ जाया करेगा. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस में देखोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना ये लास्ट जो हमने प्रोफाइल किया है फॉर्मूले वाला, जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ऑनवर्ड्स जो पूरा प्रोसेस था, वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, जबकि क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते. सो लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ वी हैव दीज 3 मोर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड इन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग. द आइडिया इज कि अभी तक मोस्टली जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan, cot, sec इनवर्स में अंदर इनपुट वाज सिंपली x, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था. बट इफ देयर इज सम कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन मींस इट इज गोइंग टू बी इजियर, नॉट डिफिकल्ट, इजी हो जाएगा. कैसे? जब भी tan इनवर्स के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा हो, ये बात पहले मैंने बोला हुआ है, अगर tan इनवर्स के अंदर कोई एक्सप्रेशन है तो it is very much likely that it is going to be tan theta. cos इनवर्स के अंदर कुछ लिखा है, it is going to be cos theta. sin इनवर्स का इनपुट should go about sin theta और cot इनवर्स का इनपुट should go about cot theta. sec इनवर्स का इनपुट sec theta में सेट होता है और cosec इनवर्स का इनपुट cosec theta में. So let's see how we go about it. देख करके आपको एक आइडिया आ गया होगा कि we are going to put x equal to tan theta. वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. दिस इज व्हाट, दिस इज cos 2 थीटा का फॉर्मूला. देखो बन गया. और यहां क्या होगा, यहां होगा tan इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता था. Yes, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta was tan 2 theta. So this is basically cot 2 theta. अब cos inverse cos 2 theta तो theta हो गया, लेकिन यहां क्या है, इधर make it tan और make it cot inverse. So let's say tan inverse, इसको मैं लिख सकता हूं tan pi minus 2 theta, sorry pi by 2. So tan inverse tan cancel, pi by 2 minus 2 theta plus 2 theta and that gives me pi by 2. That is the answer. Now you may or may not have thought about something that I keep on telling. देखो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, this is the answer, correct answer. But if you think it in advanced level, what did I say that we never assume x equal to tan theta? Would we do tan inverse x equal to theta assume करते हैं, because the idea is we always prefer to take inverse assumption in this chapter. assumption भी inverse में ही पिक करते हैं. तो assumption हमने थीटा को tan inverse x और you can say tan inverse x को थीटा माना. So यहां आने के बाद we see that कि in this scenario theta will be minus pi by 2 से plus pi by 2. minus pi by 2 से plus pi by 2 होगा तो this is minus pi to pi. This is minus pi to pi. So this will be way ahead than this tan inverse. So यहां भी ये ज्यादा प्रॉब्लम करेगा. So idea is कि this question is not correct if we consider its advanced level application. But ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए थी. That is the whole idea. Now the idea is कि this question was actually signed on the out hand side. So finally we have to take its sign and that comes out to be 1.
यहां क्या होगा, नाउ यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, नाउ दिस आंसर विल ऑल्सो मैच। द आइडिया इज कि आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, और अगर ये केसेस कंसिडर करेंगे तो इट बिकम सो मेनी डिफरेंट केसेस, ये बहुत सारे केसेस में रिड्यूस हो जाएगा। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा JEE मेंस लेवल तक का, तो हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, और अगर ये सेम क्वेश्चन एडवांस में हुआ तो विल मेक ऑल द केसेस। और इसीलिए व्हेन आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एडवांस, आई विल शो यू कि क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, कुछ इस तरीके से गिवन होते हैं कि आपको सारे केसेस की जरूरत नहीं होती है, यू विल बी नीडिंग ओनली वन केस। Like in this case, it will not be given anything. It will be given कि x belongs to -1/2 से +1/2 और 0 से 1/2, बस इतना ही given होगा। So let's do it like that. तो काफी चेंजेस कर रहा हूं मैं इसमें, ध्यान से देखना। Let us assume that x belongs to 0 to 1 ले लेते हैं, चलो। x given as 0 to 1. If x is 0 to 1, then theta will be what? Theta will be 0 to pi/4. Now theta 0 to pi/4 है, तो this 2 theta will be 0 to pi/2. 0 to pi/2 है, जब pi/2 minus 2 theta करेंगे तो वो भी 0 से pi/2 होगा, and this is again 0 to pi/2. अब 0 to pi/2 है तो नो प्रॉब्लम, बिकॉज दैट इज इन द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, तो सीधा गायब हो गया। और 0 से pi/2 है तो अगेन नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो tan इनवर्स की रेंज में। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू लेवल ऑफ क्वेश्चंस। वन लेवल ऑफ क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन नहीं गिवन होगी, आप सीधा सीधा सॉल्व करेंगे विदाउट थिंकिंग ऑफ द केसेस, और एक लेवल ऑफ क्वेश्चन में यू हैव टू थिंक ऑल द केसेस, बट द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड इन सच अ वे कि आपको सारे केसेस नहीं, कोई एक केस बनाना पड़ेगा। तो इन दिस केस आई हैव टेकन 0 to 1. लेट्स से इन द सेम क्वेश्चन x is given as 1 to x belongs to 1 से √3, x belongs to 1 से √3, या एक नेगेटिव ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स टेक x belong to -1 to 0. If x belong to -1 to 0, then theta belongs to, बोलो, theta belongs to -1 पे आएगा -pi/4 to 0. So in this case, this 2 theta will be -pi/2 to 0. -pi/2 से 0 जो है वो इसमें सबट्रैक्ट करेंगे, pi/2 माइनस, pi/2 माइनस 0 किया तो pi/2 आया, pi/2 माइनस -pi/2 किया तो पाई आया, एंड 2 theta is actually -pi/2 से 0. Now see, everything is changed because pi/2 से पाई में tan इनवर्स tan का वैल्यू x नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? pi/2 से पाई, इफ यू रिमेंबर tan इनवर्स tan x का ग्राफ, दैट वाज समथिंग लाइक दिस। तो ये pi/2 है एंड दिस इज पाई। pi/2 से पाई में जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है? 5, 4 टाइम अप। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए यू विल गेट ओनली 5 सेकेंड्स, बिकॉज स्लोप आपको पहले से पता है कि 1 है, तो y = mx + c, और c क्या है? इधर पाई है, ये लाइन यहाँ कहाँ कट करेगा? -पाई। तो pi/2 से पाई में एक्चुअली x - पाई होगा, सो दिस इज x - पाई, pi/2 से पाई में, एंड this will be cos इनवर्स cos 2 थीटा है। cos इनवर्स भी -pi/2 से 0 में उसका रेंज नहीं होता है। तो if I draw cos इनवर्स cos x का ग्राफ, that is something like this. -pi/2 से 0 में the graph is -x, so this will be actually -2 theta. What do I get? I get -pi/2 -4 theta.
minus pi by 2 minus 4 theta. What is theta? Theta is tan inverse x. So see, the question is completely changed. Just by changing the value of x, it is completely changed now. So that is the idea. You have to understand कि what exam you are actually appearing in, what level of question is there. तो ऐसे आपको कोई एक केस ही करना होगा, आपको सारे केसेस नहीं करने होंगे. सारे केसेस तो मैंने फॉर्मूले में किए थे. फॉर्मूले में आई हैव डन ऑल द केसेस. क्वेश्चंस में कोई एक केस होगा, वो भी एडवांस के में. मेंस में यूजुअली कोई एक केस ही होता है, सीधा सीधा सॉल्व करते आंसर आता है. और कई बार तो इंटरवल दिया भी होता है, वो इंटरवल भी सिंपल वाला ही होता है. लाइक इफ यू सी इन एनसीईआरटी में भी एक एक केसेस ही हैं और वो भी सिंपल वाला, जहां पे सीधा सीधा आपको फॉर्मूला मिल जाएगा. So let's not dig more. Move to next question. Next question, if you see, to sine inverse 3 by 5 minus cos inverse minus 4 by 5. Pause and solve. I am going to do this. So that is tan. Sine inverse 3 by 5 तो 37 डिग्री होता है. Cos inverse minus 4 by 5 मुझे पता है, but I am not going to use it because I don't want you to use it. What you do is, पहले इसको pi minus cos inverse 4 by 5 कर लो, क्योंकि पॉजिटिव में गलती नहीं होती है मोस्टली. तो दिस इज माइनस पाई प्लस cos inverse 4 by 5. Cos inverse 4 by 5 is again 37 degree only. What do I get? I get tan 74 minus pi, or you can say tan pi plus 74. ये क्या हुआ? और you can say simply tan 74. ऐसा कैसे? tan है, tan का पीरियड पाई होता है, एंगल में पाई ऐड कर दिया, और tan 74 will be what? Actually tan 2 into 37. And tan 2 theta is 2 tan theta. Tan 37 का वैल्यू क्या होता है? 3 by 4 upon 1 minus tan square theta. That gives me 3 by 2 upon 7 by 16, and that is 24 by 7. कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो बात अलग है. So that is the value of sine inverse 3 by 5 minus cos inverse minus 4 by 5. Next question, sine inverse x by 5 plus cosec inverse 5 by 4. Oh, cosec inverse 5 by 4 का वैल्यू तो we know. Cosec inverse 5 by 4 मतलब sine inverse 4 by 5 मतलब 53 डिग्री. So what I can say कि sine inverse x by 5 is 45 minus 53. Let's not simplify to minus 8, क्योंकि minus 8 पे वैल्यू नहीं पता होगी. हमें x by 5 चाहिए, तो we have to take sign on both the side. लेफ्ट में साइन लिया और राइट में साइन लिया, तो मिला साइन a माइनस b. दैट इज साइन a cos b minus cos a into sin b, that is 4 by 5. What do I get? 5 root 2 LCM हुआ, 3 minus 4 is minus 1, that is x by 5. What is x? Minus 1 by root 2, and that is your answer. We are going to solve some more question. Okay, so now we have these 3 more questions. Let's start from here. Cot of cos inverse 7 by 25. अब cos इनवर्स 7 by 25 का वैल्यू अगर पता होता तो काम बहुत आसान हो जाता, बट नहीं है. इसलिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, द बेसिक आइडिया, लेट्स टेक इट एज थीटा. तो cos थीटा इज 7 by 25. अब cos थीटा पता चल गया, ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड द क्वेश्चन इज नाउ cot थीटा. नाउ व्हाट? द आइडिया इज कि 25 है और 7 है, तो यू नो द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, एंड दैट विल बी 24. 25 और 7 इज बेसिकली पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो दैट गिव्स मी cot थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा, बेस अपॉन
परपेंडिकुलर दैट इज 7/24. सिंपल. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में इफ यू सी तो व्हाट वी कैन डू इज ये 2 को इधर ले आते और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते. 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाने के बाद 2 tan इनवर्स x विल बिकम tan इनवर्स समथिंग इक्वल टू tan इनवर्स x. वो दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड यू गेट द आंसर. और वन मोर आइडिया इज लेट्स से x इक्वल्स टू tan थीटा. Let's say x equal to tan theta. Actually, no. Actually, what we do is we are taking tan inverse x equal to theta. The idea is inverse के चैप्टर में assumption भी inverse में ही लेना चाहिए. So that gives me tan inverse 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta equal to 1/2 tan inverse x मतलब theta. Now you know that कि 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta ट्रिग्नोमेट्री में दिस वाज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला. एक ट्रिपलेट था एंड दैट इज π/4 माइनस थीटा. Now if I cancel tan inverse and tan, I will get π/4 minus theta equal to theta/2. 3 theta/2 is π/4, तो theta comes out to be π/6. थीटा π/6 है तो x हो गया 1/√3. दैट इज योर आंसर. अब केसेस की बात है तो देयर इज नो केसेस बिकॉज क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो हम सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हैं. हाँ, क्वेश्चन में कोई इंटरवल होगा, क्वेश्चन में कोई पॉइंट होगा, देन वी हैव टू थिंक कि tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होगा या नहीं होगा. इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू बट द क्वेश्चन इज बेसिक. So I have done it with basic idea. As I did in the last screen पे जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ था, अलग अलग केसेस को अलग अलग तरीके से डील करना, बट यहाँ केसेस नहीं बनाते हैं बिकॉज सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं. दिस वन, दिस इज अ बिट ट्रिकी बट वेरी नाइस क्वेश्चन. थिंक ऑफ इट and it looks like sin inverse a root 1 minus b square minus b root 1 minus a square. sin inverse a plus sin inverse b के फॉर्मूले जैसा, एक्चुअली माइनस. First, let me rewrite it as x को मैंने रूट x का स्क्वायर लिखा. Now you will be able to see it completely कि sin inverse x under root 1 minus y square minus y under root 1 minus x square. So that gives me sin inverse a minus sin inverse b or sin inverse x minus sin inverse y or in this case sin inverse x minus sin inverse root x. Again no condition, no interval, no value तो सीधा सीधा सॉल्व कर लिया. अब क्वेश्चन में कोई इंटरवल गिवन हो, पॉइंट गिवन हो, देन वी विल डू दैट लेंदी वाला मेथड. बट अभी सिंपल क्वेश्चंस हैं तो सिंपल तरीके से विल कीप ऑन सॉल्विंग. लेट्स डू सम मोर. लेट्स स्टार्ट विद दिस. Idea is very simple. The smallest inverse will be theta. तो tan inverse x को theta माना, x हो गया tan theta. Triangle draw किया, tan theta is perpendicular upon base. Hypotenuse will be under root 1 plus x square. And the question become sin cot inverse cos theta. Tan inverse x को theta माना है. Now we know that cos theta is base upon hypotenuse. Now again we have to assume this cot inverse this equal to phi. मतलब cot phi is 1 upon this. ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा. Hypotenuse will be what? Using Pythagoras that will be x square plus 2. And the question becomes sin phi और sin होता है perpendicular upon hypotenuse. That is under root x square plus 1 upon x square plus 2. Now we have this question. Sin inverse x equals to 2 tan inverse x. दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शन हैं. What I can do one part is कि 2 tan inverse x is tan inverse 2x upon 1 minus x square.
बट दैट वॉज ओनली वन केस। एक और भी केस होता है जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, बट एक्स स्क्वायर 1 से ज्यादा हो नहीं सकता बिकॉज साइन इनवर्स एक्स लिखा है, और साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू -1 से 1 होगा, तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। नाउ इफ आई डू दिस, नाउ आई एम गोइंग टू ईदर कन्वर्ट दिस टू tan। अब tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद tan इनवर्स हटाना है। इट मीन्स दोनों साइड tan ले लेते हैं, तो tan ऑफ साइन इनवर्स x इज tan ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan ऑफ साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा? दिस विल बी tan थीटा, क्योंकि इसको थीटा माना तो साइन थीटा हो गया x, ट्राइंगल फॉर्म किया तो क्या मिला? tan ऑफ थीटा, tan is perpendicular upon base and that is this, and this is 2x upon 1 minus x square. One thing is कि x का वैल्यू 0 आएगा, अगर नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा। So what we have is 1 minus x square is 2 root 1 minus x square. अब या तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा या फिर उसको कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2, विच इज नॉट पॉसिबल। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग इज 0 एंड प्लस -1। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आंसर्स आते हैं, वो आंसर्स चेक करो कि एक्चुअल पॉसिबल अगर है तो चेक करो वेदर दे सैटिस्फाई और नॉट। 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0 is 0, tan इनवर्स 0 is 0, 2 into 0 is 0, तो 0 मैच कर गए। 1 की बात करते हैं, 1 पे LHS का वैल्यू आएगा π/2 90 डिग्री। 1 पे tan इनवर्स का वैल्यू 45 into 2 किया तो 90 मैच कर गया तो 1 ऑल्सो ओके। -1 चेक करोगे तो -1 का -90, -45 into 2 -90, मतलब तीनों आंसर करेक्ट ना। अगर ऑप्शन में यू हैव 0 1 -1 के साथ कोई और भी नंबर है, देन यू हैव टू थिंक अगेन कि हमने कुछ केसेस तो मिस नहीं किए हैं, तब वो केसेस वाली बात आ जाएगी। बट इन दिस क्वेश्चन द ऑप्शंस वर सच दैट एक ऑप्शन 0 1 -1 था, और 0 1 -1 का सुपर सेट क्वेश्चन नहीं था। There was no option like 0 1 -1 and something else. So now we are sure that this would be the answer. So that is the whole idea. Now we will solve some more questions. Now we have these 4 more questions. First question की बात करते हैं, sin of cot inverse x plus 1 equal to cos of tan inverse x. Let's mark it A and let's mark it B. तो cot A का वैल्यू गिवन है, cot A अगर गिवन है तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। So the hypotenuse will be under root x square plus 2x plus 2. Think of it. Simple है, ज्यादा कुछ नहीं है करने का। And in this case, tan B will be x, so this will be x square plus 1. Now what we need is sin of A. Sin A is perpendicular upon hypotenuse. And cos B is base upon hypotenuse. What do I get? Let me cross multiply and square. I will get this equal to this. So 2x equals to -1, x equals to -1/2. सिंगल ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है -1/2, तो दैट इज करेक्ट। स्टिल यू शुड एक्चुअली चेक इफ पॉसिबल, अगर चेक हो सकते हैं। लेट्स चेक। -1/2 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 का कॉट इनवर्स पता नहीं है तो चेक नहीं कर सकते। हाँ, अप्रोक्सीमेट एंगल लेके कर सकते हैं, बट दैट्स ओके। अगर सीधा सीधा कुछ अच्छी वैल्यू जाती तो चेक कर लेना अच्छा होता है। नो, इन दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द ऑप्शन ऑल्सो। ऑप्शन भी है तो यू विल बी एबल टू मैनेज, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हमारा आंसर सही है या रॉन्ग है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो बहुत आसान है, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड यू कैन से साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज π/2 एंड साइन इनवर्स 1/x plus cos inverse x is also 1/2 and answer is pi.
But there is a problem. The problem is कि sin inverse x will give me x belongs to -1 to 1, or I can say mod x is less than equal to 1. Sin inverse 1 by x की बात करेंगे तो that will give me mod x is greater than equal to 1. cos inverse x में भी ये आएगा और cos inverse 1 by x में भी आएगा. Now these two should be simultaneously true and का symbol है, so I can say mod x का value सिर्फ ±1 होगा और कुछ नहीं हो सकता. Mod x has to be +1 and mod x could be only +1. And so x will be ±1. These are the only two cases. वो बात अलग है कि आंसर अभी भी वही आएगा. So let's say कि ये fx है, तो fx का वैल्यू एट x इक्वल टू 1, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 बाय 1 मतलब साइन इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 and cos inverse 1, answer is pi. And if I do f of -1, sin inverse -1 is minus pi by 2, sin inverse -1 is minus pi by 2, cos inverse -1 is pi, and cos inverse x is pi. Again the answer is pi. Now what is so important about it? So idea is कि it is not always कि यहाँ से जो रेंज आया वो सीधा सीधा वही सही होगा, because there is a typical case. Let me show you one example. Sin inverse x plus cos inverse x plus tan inverse x. इसका डोमेन फाइंड करना है. You have to find domain or not domain, range of this function. Find range of this function. So usual answer is कि sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2 और tan inverse का रेंज होता है minus pi by 2 से plus pi by 2 open. So what do I get? I get 0 to pi. That is the usual answer by the students, which is wrong. Now pause the video and think कि इसमें रॉन्ग क्या है. व्हाट इज रॉन्ग? बिकॉज एवरीथिंग इज करेक्ट. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है. टैन इनवर्स का रेंज ये होता है. रेंज में कोई कांस्टेंट ऐड करना है. दैट इज परफेक्टली ऑलराइट. बट दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 ओनली इफ साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स डिफाइंड भी तो होना चाहिए, और वो सिर्फ -1 से 1 में होता है. और इसका मतलब अगर x -1 से 1 होना है तो फिर ये जो नंबर है ये -π/4 से +π/4 होगा सिर्फ, क्योंकि -1 से +1 में tan इनवर्स का रेंज -π/4 से +π/4 होगा. एंड देन इफ आई ऐड देम व्हाट डू आई गेट? π/2 minus π/4 is π/4. π/2 plus π/4 is 3π/4, and that is actually your correct answer. तो डोमेन, कोडोमेन या रेंज जो भी बोलो, तो डोमेन और कोडोमेन आपको याद होने चाहिए. इन इनवर्स एवरीवेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स. एक क्वेश्चन अच्छा ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दीज 2 more questions. दिस वन tan इनवर्स x है और उधर sin इनवर्स x है. लेट्स कन्वर्ट दिस टू tan इनवर्स. अगर sin थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब मैंने अजम्पशन थोड़े कम कर दिए हैं, स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाएगा. अब तक आप भी कंफर्टेबल हो चुके होंगे. एंड दिस विल बी 1. So tan में I can say this is tan inverse perpendicular upon base. So sin inverse 3/√10 is approximately equal to tan inverse 3 and exactly equal to. So x comes out to be 3. Think of it. And now here cot inverse plus sin inverse. आंसर मुझे चाहिए साइन इनवर्स में. साइन इनवर्स में आंसर चाहिए, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू साइन इनवर्स, एंड दैट इज वेरी सिंपल.
कैसे? cot इनवर्स 3/4 में एंगल पता है हमें, cot इनवर्स 3/4 इज बेसिकली 57 डिग्री, और 57 डिग्री में साइन इनवर्स इज 53 डिग्री, वो 4/5 होता है। या फिर ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, ये थीटा ही तो है और थीटा है 3/4, तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज 4/5, तो थीटा इज साइन इनवर्स 4/5। टेक योर टाइम, थोड़ा फास्ट किया है बट यू विल बी एबल टू मैनेज। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आना है आ जाएगा। Let's solve this finally. 4/5. This is 12/13. Take your time. And the next bracket is 3/5. That gives me sine inverse. LCM हो गया 65. And the numerator is 48 and 15. 48 and 15 is 63. To sine inverse 63/65, and that is your answer. So these were some questions. तो questions ऐसे बहुत सारे चलते रहेंगे. There is no limit to this. So let's wind it up. And next we are going for the next profile, a different kind of questions. Mainly it is like कंडीशनल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशनल आइडेंटिटी आपने पढ़ा था, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू व्हाट? कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई 2 पाई एंड सो ऑन। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन इनवर्स आल्सो, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व देम एंड देन वी विल प्रोसीड फ्रॉम देयर। सो थैंक यू।